Ready, so begin. So I'm starting the session. So my screen is visible or not? My screen is visible. Okay. So today we will learn Matplotlib and the seaborn libraries. So what is Matplotlib? Matplotlib is an excellent 2D and 3D graphics library for generating scientific figures. Okay. So in Python, suppose you want to make some figures. So this can be done with the help of Matplotlib and seaborn libraries. The generally easy to start with simple plots and for custom. So what we have to do for install this? So you have to, if you have Anaconda, you can install the install Matplotlib, or if you have installed Pips, pip install Matplotlib. So in this way you can install it. I hope maximum of you have done it, or if you have not done, please do it. So here first I will import it. After you will download it using pip install Matplotlib, it will take a few seconds only and it will download. After it, when I import it, now import matplotlib.pyplot as PLT. So I will, whenever I use PLT, it means this thing. Okay. So today my speed will be high, so be attentive. I have to cover a lot of things. So that line is only for the using okay, okay. So first I will import numpy as np and x equal to np dot line space 0, 5, 11, so 11 points will be there and between 0 to 5 and y equal to x squared. If I write x, I will get the value of x. Okay. If I write y, I will get the value of y. Okay, 0 to 0.251. इफ माई वॉइस कट जाती है फिर प्रॉब्लम बोल देना क्योंकि मैं स्पीड चलूंगा तो मिस प्रॉब्लम आएगी। वो जहाँ भी लेगी प्रॉब्लम है बोल देना, टेस्ट वगैरह हो सकता है मैं ना देखूँ। जो भी हो बोल देना बस कि यहाँ पे वॉइस लैग है, ऐसा है। ठीक है, नहीं कि प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिक में प्लॉट लिखा तो पी एल टी प्लॉट एक्स वाई आर। आर इज रेड, तो जब भी मैं ऐसे आर लिखूँ मतलब कलर रेड की बात है। और एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस पर टाइटल। ओके, वाई एक्सिस टाइटल लिया, स्ट्रिंग टाइटल लिया। ओके। तो दिस इज द वे टू राइट plt डॉट एक्स लेबल। एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा टाइटल या वो एक्सिस टाइटल या एंड टाइटल। ओवरऑल जो टाइटल आएगा वो आएगा स्ट्रिंग टाइटल ही। तो मतलब ये हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, पर ऐसा है। और plt डॉट शो से क्या होगा, वो ग्राफ में शो हो जाएगा। whenever we run this I will get this. Okay. So this is also basic thing. Creating multi plots from same color. Suppose I want to do more than one plot. So plt dot subplot 1 to 1. This means this one simplifies one row. Okay, this is a one row and or two. This means two columns. One column, second column. So these two graphs. So there are two graphs in the row. So this is one row, this is one row, and this is first column. This is second column. Okay. So one, two. So what does it mean? One, two. Meaning one row and two column and one. This means for first figure x y r. ठीक है। जैसे मैंने डिफाइन किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ग्राफ आ गया था तो डेड में आएगा। और माइनस माइनस मतलब इस फॉर्म में माइनस लाइन में आएगा। और 1 2 2 मतलब 1 2 का 2 मतलब एक रो सेकंड कॉलम का एक सेकंड पार्ट है। सेकंड की बात कर रही है। इसमें क्या है वाई एक्स, होता है इसे उल्टा कर देना वाई एक्स। और जी स्टार माइनस फॉर्म में लाइन आ गई। ठीक है। और जब मैं स्क्रीन करूँ तो इसका फिर आपको मिलेगा मैटप्लॉटलिब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में वैसे वेट ऑफ मेथड दिस ओके। सो फिगर इज इक्वल टू प्लॉट डॉट फिगर दिस। So if I will get the figure, I'm taking this. Add a set of axes to the first I will by from this code we are setting axis. Okay. So 0.1, 0.1, 0.8. So what does this mean? This means 0.1 from this side, 0.1 from this side, and this is 0.8, this length, and this is 0.8. Okay. तो हम ये डिस्टेंस सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डिस्टेंस चेंज कर दूँ तो देख सकते हो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी 0.2। तो मैं इसको 0 कर दूँ तो क्या हो जाएगा?
लेफ्ट बॉटम विथ 0.5 दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ से इस पूरे ग्राफ को वो 1/1 की तरह प्रेजेंट करता है। तो 0.5 मतलब 0.5, और 1 यानी यहाँ से 1, यहाँ पे वो टॉप पे प्रेजेंट करता है। तो सेट टाइटल कहाँ लिखा है? 0.5 फॉरवर्ड। सो ये पूरे ग्राफ को 1/1 पे तो विजुलाइज करो। और यहाँ से आधा, यहाँ से 0.5 है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ से जो 1 यानी यहाँ से पूरा आएगा। तो सेट टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह वो ये लिखा होगा टेस्ट। और सेट टाइटल में मतलब वो ठीक है, ये सब बता देता हूँ। Code is a little more complicated, but the advantage is way for control of plotness of place and we can easily add them. Okay, तो एक्स वाली एक्सिस भी, जैसे यहाँ पे हमें दो एक्सिस चाहिए, जैसे ग्राफ के अंदर ग्राफ में एक्सिस ज्यादा चाहिए, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे फिर? और फिगर पीएलटी और फिगर, ठीक है। एक्सिस सबसे पहले मैंने फर्स्ट को डिफाइन किया, 0.1, 0.1, 0.8, 0.8, ठीक है। यहाँ से वो ये वाला बड़ा लगा। इसके बाद है 0.2, 0.5, 0.4, 0.3, तो 0.2, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से 0.5, ठीक है, और यहाँ से 0.4 ये रहा, 0.3 ये रहा। तो 0.2, 0.5, 0.4, 0.3, तो इसका हो गया, ठीक है। तो सेट एक्स अंदर वाले को मेन। तो सबसे पहले जो आंसर एक्सेस वन, जो वन वाला प्लॉट है, वो ब्लू, यानी मैं मेन वाला जो इसको ब्लू से बनाऊंगा। और एक्स वाई बी का, और ये वाई एक्स आ गया, मतलब इसमें एक्स और उल्टा आएगा और रेड कलर में आ रहा है, ठीक है। सिस्टम इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। और एक्सेस लेवल एक्सेस टू, ठीक है। एक्स वाई एक्सेस लेवल, तो दिस सिस्टम मार्किंग हम करना देख लिए थे। सेट एक्स लेवल सेट वाई लेवल, तो उससे हो जाएगा। और टाइटल एक्सेस टू टाइटल, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेस टू, ठीक है। वो टू टू लिखाएगा, वो वन होगा, पर ठीक है, हम अंडरस्टूड है। यहाँ पे वन कर दो, वन कर दो नीचे भी। मतलब कोई इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। एक्सेस वन के लिए था, एक्सेस वन, एक्सेस वन, एक्सेस वन, ऐसे लाइट है। तो फिगर के अंदर फिगर चाहिए, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। और दोनों का एक्सेस डिपेंड कर देना कितने कितने डिस्टेंस पर है। और जैसे हम इसको मॉडिफाई करके देखें, कुछ चल आता है कि नहीं, तो वहाँ पर पता चल जाएगा। तो मैसेज में, ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे 0.5 करने पे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो आई कांट डू दिस। तो यहाँ से मैं इसको ठीक कर देता हूँ, तो इससे प्रॉपर इंडेक्स में आ रहा है। तो लाइक दैट वी कैन डू द सेटिंग्स। तो यहाँ से ये सही था, यहाँ पे ही गड़बड़ हो गया था। तो इस टर्म सेट कर सब प्लॉट्स, ठीक है, सब प्लॉट्स की बात करते हैं। विल एक्ट एज अ मोर ऑटोमेटिक एक्सेस मैनेजर, ठीक है। तो अपने आप ये थोड़ा सा हैंडल कर लेता है। तो यूज सिमिलर टू प्लॉट फिगर एक्सेप्ट इस ट्रिपल पैकिंग, तो गिरा फिगर इन एक्सेस, यहाँ पे ट्रिपल पैकिंग होगा। Now use the axis object to add stuff. तो axis dot plot x y r, ठीक है। तो रेड लाइन है x y, ठीक है। और x लेवल के x y, y टाइप में टाइप में, और वही जो x y है वो ओरिजिनल वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो स्टैंडर्ड है ऑब्वियस लेवल में, यहाँ पे कुछ ग्राफ में चेंज कर दो स्टार्टिंग में ही, तो नीचे भी चेंज आ जाएगा। वो यू कैन चेक दैट। तो पूरा ऊपर से चलता आ रहा है। देन यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज, एक रोज है, एक कॉलम दो, एक कॉलम दो कॉलम, तो दो कॉलम बने, तो एक्स्ट्रा ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। और एक्सेस, वही एक्सेस जो एक्सेस होती है एक्स पर, तो उस पर दिखा रहे कि एरे एक्सेस इज एन एरे ऑफ एक्सेस, तो दो कैपिटल से लिखो। तो इसका मतलब होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है दो एरे ऑफ एक्सेस में। डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फोर एक्सेस इन दिस एक्सेस प्लॉट एक्स वाई बी सेट लेवल एक्स वाई टाइटल, ठीक है। तो इस तरह वो सेट हो गया था सिमिलरली टाइटल, ओके। तो यू कैन से दिस, यहाँ पर दो एलिमेंट है, तो यहाँ से दो डिस्प्ले द फिगर, तो फिर तो फिर लिखने से प्रिंट हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो ओवरलैप हो रहा है, तो इस ओवरलैप को मैं सही कर, जैसे मैक्स कभी कभी हो जाता है, हम जैसे सेटिंग, बट कुछ होते हैं बाय डिफॉल्ट फीचर जिसमें वो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो ओवरलैप मिल जाता है। तो इस ओवरलैप को सुधारने के लिए क्या करूंगा? फिर टाइट लेआउट, यहाँ पे मैं टाइट लेआउट यूज करूंगा।
stack load करना सीखा होगा अपने आप वो, which automatically adjust the positions of the axis on the figure canvas so that there is no overlapping content. इससे क्या होगा, कोई भी overlapping content हमें नहीं मिलेगा, like this. वो जो एरर सब दूर हो गया यहाँ पे। तो टाइट लेआउट हम काफी टाइम यूज करेंगे जब भी, और ताकि फिगर द मोर देन वन कॉलम हो, ताकि वो हमारा ओवरलैप ना हो जाए, बाकी ग्रीन हो तो यहाँ पे ग्रीन से नहीं हो। तो figure size a couple of width and height of the figures in inches. Okay, like figure size मतलब ये width 8 और height है 4, और डीपीएस मतलब डॉट्स पर इंच, पिक्सल पर इंच, ठीक है, 100 है। तो इसका जब मैं इसको रन करूँगा तो इसका मतलब फिगर साइज 800 बाई 400 विथ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे 800 मतलब कितना डॉट्स पर इंच आ रहा है टोटल, टोटल जो है। और मैंने किया है मैंने, okay. The same argument can also be passed to layout managers such as subplots function, ठीक है। तो फिगर एक्सिस और सबप्लॉट्स 12 को मुझे, ठीक है, तो एक्स में इधर 12 आएगा और हाइट 3 आएगी, 30 बनेगा। And और units उसको रन करके देख सकते हैं। तो अलग ऐड है एक्स वाई टाइटल, ठीक है, सेम चीज। सेविंग फिगर्स, मैटप्लॉट कैन जनरेट हाई क्वालिटी आउटपुट इन अ नंबर फॉर्मेट इंक्लूडिंग पीएनजी टेक्स्ट, ठीक है। तो आप जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में वो आपको दे सकता है, पीएनजी, जेपीजी, ईपीएस, एसएफजी, पीजीएफ में भी है। डायरेक्ट फाइल लेंगे पीएनजी तो पीएनजी फॉर्मेट में मिल जाएगा, पीडीएफ लोगे पीएनजी फॉर्म मिल जाएगा। तो कस्टम फॉर्म में भी मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस कोड एफ आई फिगर डॉट और सेव फिगर, इस फॉर्म में करेंगे तो फॉर्म में वो मिल जाएगा, हाई क्वालिटी मतलब काफी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और फिगर डॉट सेव फिगर फाइल नेम पीएनजी डीपीएस 200, तो हम पे डीपीएस ही सेट कर सकते हैं, चाहे नहीं भी करें तो ऑप्शनल होता है। तो यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू नीड, और डिफॉल्ट चाहिए तो डिफॉल्ट में तो उसमें वो चल रहा है। और लिगेंड्स, labels, titles, ठीक है, अभी देखेंगे। और note that we have covered the basics of how to create a figure canvas and access instant raw canvas. Like look at how decorate a figure with titles, axis, labels and legend. Okay, so title, set title, नाम मैंने टाइटल, एक्सिस लेबल एक्स का एक्स, वाई का वाई डाल दिया। लेजेंड्स क्या होता है, अभी मैं फिर बताता हूँ। ये जो लिखा है ना ये चीज, इसको बोलते हैं लेजेंड्स, ठीक है। ये जो चीज लिखी है उसको बोलते हैं लेजेंड। तो you can use a label equal to label text keyword recommend blocks or of the site side when you can method without a with this 001 that, okay, the set है 001, फिगर सेट हो गया। और 11 मतलब पूरा ये लेगा, पूरा एट दैन पूरा पूरा लेगा ये। आपको कुछ समय पर स्पेस नहीं चाहिए साइड वगैरह पे, पूरा स्पेस कवर कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेबल उस पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका लेबल एक्स क्यूब आ रहा है। जैसे ये अ, देख सकते हो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर आ रहा है। कुछ ओवरलैप होता है तो यहाँ पे काफी कम डिस्टेंस होगा, इसलिए ओवरलैप दिख रहा है। एक्चुअली पूरा ओवरलैप होता नहीं, 2.0 अपन को ओवरलैप होता है बस, एज यूजल। सो दिस इज द थिंग। तो एक्सेस डॉट लेजेंड कर दिया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से वो देख लेगा कहाँ पे ओवरलैप ना हो। जैसे बाय डिफॉल्ट से ऊपर ही देख रहा है, क्योंकि वो अपने आप से देख रहा है कि हाँ बेस्ट बेटर ऑप्शन होगा। तो हम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें अगर ब्रैकेट में एलओसी वन लिख दूंगा तो ऊपर राइट कॉर्नर में आ जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इससे क्या होगा, वो अपर राइट कॉर्नर में आ जाएगा, जैसे पहले था अपर राइट कॉर्नर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो ये हमने खुद से क्या प्रॉब्लम आ गई, लेकिन जब बाई डिफॉल्ट हमने देखा था एरर नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैं पहले से कर देता हूँ, नीचे आके थोड़ा सा ये, इससे क्या हुआ, अपर लेफ्ट कॉर्नर जैसे पहले था, ये बेस्ट लोकेशन थी। तो मैं इसको हटा के चेक कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जब मैं इसको इंक्लूड देखो लोअर लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। नली वो लोअर राइट में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ही होता है कि हम इसको बाय डिफॉल्ट वाला जो है एल एस जीरो करके चलते हैं। एल एस जीरो से क्या होगा, वो अपने डिफॉल्ट में आ जाएगा। सो जब मैं इसको रन करूँ तो डिफॉल्ट को देख लेगा कि किसमें बेस्ट है। वो अपना जैसे यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो अपना सेट डिस कर लेता है। लाइक मैटप्लॉटलिब डिसाइड ऑप्टिमल लोकेशन, तो उसको डिसाइड करने तो वो अपने हिसाब से सही करके दे देगा। और सेटिंग कलर्स, लाइन विड्थ, लाइन टाइप्स, मैटप्लॉटलिब gives a lot of option for customizing colors, line width, line this. और syntax which is okay.
सो ओके, सो बी डॉट माइनस मतलब वो डॉट दिस फॉर्म में देगा वो एक्स स्क्वायर का, और एक्स क्यूब का वो ग्रीन कलर में देगा, डैश 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 फॉर्म में, ग्रीन का डैश डैश, और ये डॉट दिस फॉर्म में देगा। ओके, तो मिक्स करें obviously। ओके, तो जैसा हमें चाहिए, जिस हमें ग्राफ चाहिए, मान लो अभी तो बस दो है, मान लो हमारे पास मोर देन 10 लाइन्स होती है, तो उसमें देखना पड़ता है कि कौन से कलर से कितना वैरायटी हो, इतना बेटर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे काफी हेल्प होगी इस फीचर की, कि एक्स डॉट प्लॉट कर लिया तो ये एक्स है, ये वाइट कलर होता है, ठीक है। तो एक और बात, अगर मैं उल्टा करके लिखूँ तो क्या होगा? ठीक है, तो उंगली दिखा रहा है। ठीक, तो जो ऑर्डर है वैसे लिखना होता है, या फिर यहाँ पे इसको बाई कॉमा डूइंग वैलिड है, तो मैं ओरिजिनल लिखना होगा एक्स कॉमा एक्स से, तो हम उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब फालतू में बी डॉट माइनस फॉरवर्ड कॉमा, तो कॉमा गलती से तो ठीक है। तो देख सकते हो जैसे वो, जब हमने ऐसे किया, तो ये ओरिजिनल वाला जो ग्राफ था वो डिफॉल्ट वाले जो पहले तो उस पर आ गया, जो पहले हमने किया था बाई एक्स वाला, तो वो दिखा रहा है। ठीक है, तो एक्स कॉमा एक्स ऑल पावर टू, तो मैंने इसको ऐसे किया तो वाई को टू एक्स को में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे लाइन है यहाँ पे एक्स वाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तीन लाइन बनेगी, और ब्लू क्या होता है, ब्लू आ जाएगा, पर्पल में पल, और ये कलर कोड है, तो ये फॉर्म में, तो लाइट डॉट का कुछ कोड है कलर का, कुछ कलर अपने वाला है अल्फा 0.5, हाफ ट्रांसपेरेंट। ओके, तो अगर मैं अल्फा उठा के देखूँ तो क्या हो? हाँ देखो, डार्क हो गया, ठीक है। तो वही हाफ ट्रांसपेरेंट मतलब वही है कि वो हाफ विजिबल होगा। ठीक है, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग पॉइंट टू कर सकते हैं, ताकि अ, बहुत कम विजिबल होता है, तो अपने अकॉर्डिंग तो स्ट्रॉन्ग वैरायटी दे सकते हैं उसको बहुत सारी, अल्फा नाम से, अल्फा इक्वल टू थिंक करके दे। ठीक है, लाइन एंड मार्कर स्काई, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं इस पे, तो यहाँ पे चार लाइन एक्स प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर में रेड 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 आ रहा है, तो मैं लाइन में चेंज करता हूँ, 0.2 0.5 1.2 तो इस टर्म वैरायटी दिया तो कितना को कितना फर्क हो गया। ओके, और यहाँ पे ध्यान देना, तो लाइन भी चेंज हो रही है, पतले से मोटा ये लाइन भी चेंज हो रही है, और जो मैंने पहले चेंज किया था वो कलर में फेड हो रहा था, कलर में, कि उसमें कलर का जो शेड है वो कितना ट्रांसपेरेंट कितना विजिबल हो। तो ये डिफरेंट फीचर्स है, तो हम ये दो फीचर्स अलग अलग होती है। कलर के लिए अल्फा होता है कि कलर कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना विजिबल होना चाहिए, और लाइन विथ है, लाइन कितनी पतली मोटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइन विथ है, डब्ल्यू को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ग्रीन है, ग्रीन में तीन तीन फिक्स साइज कर दिया है कि देखो लाइन मोटी लग रही है, लाइन विथ ज्यादा ही। अब हमने यहाँ पे स्टाइल चेंज कर दी कि हाँ ये यहाँ पे डैश लाइन में होगा, फिर डैश डॉट, तो यहाँ पे कॉलम फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आ रहा है, यू कैन सी दिस, ये वैराइटीज है, ये सब देख लो कैसे ऐसे यूज होती है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे नीडेड होगी तो हम ऐसा यूज करें। जैसे यहाँ पे डैश करेंगे तो यहाँ पे डैश जैसे और लाइन आ रही है, यहाँ पे ये किया तो इस फॉर्म की लाइन आ रही है, ठीक है। तो इस फॉर्म मैंने रन कर लिया था, है ना? तो ओके, तो एक्स प्लस इट वाली ब्लैक में आएगी एज यूजल, और एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कस्टम मतलब इन द सेंस जो, और जो देन कस्टम देन जो होती है फॉलो सो मैं ये देख सकता हूँ, ये ब्लैक है,
कस्टम फॉर्म। तो जनरली हम लाइन ऐसी रखते हैं ना, तो वही है, उसी फॉर्म में। लाइन विथ है, लाइन विथ चेंज कर सकते हैं। और लाइन डॉट सेट दिस 5 10 15 5 10 15 10। तो कुछ चेंज है क्या? ओके। हाँ, 5 10 15 10 5 10 15 10 समय चलना, ठीक है। 5 10 15 10 5 10 15 10। तो यहाँ पे चेंज कर देख सकते हैं, अगर मैं इसको 15 की जगह 2 0 कर दूँ, 1 2 0 4 इतना करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये देखो, 5 10 120 इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो इस फॉर्म दे सकते हैं हमें। ओके। तो 5 10 15 10 का मतलब क्लियर हो गया होगा कि 5 10 15 10 5 10 15 10 और 20 इस फॉर्म रिपीट होगा वो। और उसके बाद है ये लैंग्वेज 3 का है, तो वही इसमें देख सकते हो प्लस का है ट्रीटमेंट, ये डैश डबल डैश दिस दिस, सो दिस डबल डैश दिस। अब यहाँ पे प्लस ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब है बीच में जो ओ आएगा, यहाँ पे ये प्लस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो प्लस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे ओ फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? मार्कर एस और वन, तो अकॉर्डिंगली ये वन एस फॉर्म में आ रहा है। तो ये फीचर्स है इसके किस फॉर्म में आना चाहिए, तो उस स्टेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्कर वही है। यहाँ पे लाइन पे हो जाता है, तो चलो फीचर्स उसके। और फाइनली ये वाला पर्पल है, और इसमें दिस वो मार्ट साइज के तो 248 समथिंग लाइक दैट। तो मार्क का फेस रेड, यहाँ पे जो फेस हमने इसका पर्पल ही था, मैंने चेंज कर सकता हूँ। मार्क का फेस कलर जो रेड कर दिया, कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मार्क का फेस, जैसे इसमें क्या हुआ है, इसमें मार्क का फेस कलर मैंने येलो किया, और मार्क का फेस भी तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। दिस इज अप टू अस, कैसे हमें चेंज करना है, कैसे करना है। और यहाँ पे जो क्या लिखा है, ये कैसे बन रहा है? और ये बन रहा है इस फॉर्म से, स्क्वायर। ये सर्कल का है, ये स्क्वायर का है, सो एच मीन्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हो। ये डिफरेंट फीचर्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क करके अच्छे से देख लेंगे अगला। ये पूरा आपका कवर कर लेगा, जितना भी फीचर्स है मैक्सिमम सारे तो फीचर्स कवर है इसमें, ठीक है। तो काफी ध्यान से देखना। कंट्रोल ओवर एक्सिस अपेंडिक्स, कंट्रोलिंग एक्सिस साइजिंग प्रॉपर्टीज है। तो एक्सिस साइजिंग की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है। और जैसे यहाँ पे देखो 1 3, इसका मतलब है एक रो है और 3 कॉलम है, एक कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। और फिगर 12 का मतलब ये 12 है, 4 है, मतलब ये 12 है और ये 4 है। तो दिस 12/4 का फिगर है। ओके। तो 12 फुल डिफॉल्ट एक्सिस रेंजेस, तो बाय डिफॉल्ट हमने जो रखा था वैसे हमने छोड़ डिफॉल्ट एक्सिस रेंजेस लिए अपनी कवर। वहाँ पे टाइट एक्सिस लेगा, यहाँ पे कस्टम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, तो दिस इज एक्स पे एक्स को बना है, एक्स पे एक्स क्यूब बना हुआ है। यहाँ पे एक्स पे एक्स स्क्वायर, तो मतलब ग्राफ सेम ही है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। यहाँ पे चेंज करके सारा को देखना। यहाँ पे टाइट है, मतलब ये जनरल सबसे, और उसको लैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो सबसे सॉरी एक्सिस टाइट, ठीक है, मतलब मैं सही बोला। तो मैं टाइट एक्सिस, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं की बाय डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट एक्सिस रेंज में जनरल ऐसा आता है। हमने इसको टाइट फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पे कोई ऐसा हो क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग तक नहीं आया कोई। और यहाँ पे वाई की लिमिट कर दी मैंने, वाई लिमिट 0 to 60, ठीक है। यहाँ पे एक्स की कर दी मैंने 0 2 to 5, और कस्टम एक्सेस है, तो ये हम अपने साल चेंज कर सकते हैं हिसाब से। और तो कि में स्पेसिफिक चीज की जानकारी चाहिए होती है, जैसे में इसमें चाहिए 2 to, हाँ, तो क्या है? तो देखो ऐसे दिखेगा।
तो इसको पढ़ने उससे स्टडी करने का मतलब नहीं है। तो मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टडी लाइक हो। सिर्फ मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे स्टडी लाइक नहीं, मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। यहाँ से ही निकल गया तो फिर नहीं, मतलब उसको slots we can create, such as bar plots, histograms, scatter plots, and nothing. Most of these plots will naturally create which is C1 or status. और C1 हम देखेंगे इस मैट्रिक्स से scatter मेथड और ठीक है। स्लाइड यहाँ पे मूव मतलब बंद बता देना, मेरा दिखा रहा है कि अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही करो, जहाँ लगे प्रॉब्लम है बता देना। हम रैंडम इनपुट थे तो रैंडम इनपुट हमने सैंपल्स ले लिया, डेटा सैंपल रेंज, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, और इसको आई थिंक तुम जानते हो कैसे करना है। यहाँ पे 7 है, ये 7 9 14 9 ठीक है। और इस 9 का क्या मतलब है, यहाँ से 9 डिस्टेंस पर है। 107.8, यहाँ से 107.8 का विस्तार है। 206 विस्तार, तो लाइक दिस ओनली। 305 का है, 400 500 600 990 का है, 997 से। तो लाइट डेटा तो टोटल हम देखेंगे, और 10 और 1 से 1000 के बीच में, और ये उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस हमें मिल गया बाहर ऑब्जर्व पेन आर्टिस्ट, ठीक है, पेन इसमें और वैसे ठीक है। लिखते हैं एमपी डॉट रैंडम नॉर्मल स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर ऑल। ये रैंडम कुछ बन गया है। तो इसमें हाँ, एक 1 to 4 है, मतलब ये 1 2 3 3 आएगा, ठीक है। और ओके, दूसरा सब फीचर्स में से सारा देख लो। रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट चाहिए हमें नीड हो तो हम ऐसा बनाए। और मैं इसको फॉस्ट फीचर्स अगर मैं फॉस्ट करके क्या कर सकते हैं, मतलब दिख बन जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यहाँ से ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड है ये। फर्दर रिड्यूस एडवांस, ठीक है। अब तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस मैटलॉब के फीचर्स पे चलते हैं। तो दिस विल कवर सम एडवांस टॉपिक व्हिच वोंट इजीली यूज एज ऑफिस, क्योंकि ज्यादा काम नहीं आता पर ऐसा पता होना चाहिए। तो मतलब सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो पहले भी था, ठीक है। तो 1 2 का मतलब एक रो है 2 कॉलम है, और साइज 10 में 4 है तो 10 है, और ये 4 है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक कॉलम, एक रो 2 कॉलम और 10, एक्स एक्सिस पर वाई पे 4 है, तो सेट पर हाईलाइट 10, 4 एक्सिस 0 तो 2 है, 0 1 इस सब डिफाइन कर रहा है कोई एक्सिस 0 मतलब इसको डिफाइन कर रहा है, वन इसको एक्स एन पी ई की पावर है, ठीक है। ये एक्स और ना ये की पावर काफी हेड तेज बढ़ रहा है। नॉर्मल स्केल मतलब नॉर्मल स्केल है, ठीक है। नॉर्मल स्केल में इसको हम जल्दी स्टडी नहीं करते, क्योंकि इतना वो मतलब स्टडी इतना फीचर्स नहीं मिल रहा है। और मैं इसको वाई स्केल को मैं लॉग में कन्वर्ट कर दूँ, और टाइटल चेंज करो लॉगरिथम स्केल में, तो लॉग में करने के बाद दिख जाएगी लॉगरिथम की स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उसका फीचर देखो, ठीक है। इस फॉर्म में स्टडी करने में काफी हेल्प होगा। तो हमें जैसा कन्वर्ट करना है लॉगरिथम में वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स देखिए, मैं वाई की जगह एक्स कर दूंगा, तो हमें देखिए कि वो और बहुत पेशेंट इसमें, ये देखो। तो ठीक है, तो हम इसको अपने अनुसार जिसको हमें लॉगरिथम लेना है उसमें ले सकते हैं। नहीं, इतना कभी जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर तो कर लेंगे। और टिक्स क्या होता है, टिक्स मतलब है जो मार्किंग है, दिस दिस जो ये सब होता है टिक। हाँ, कस्टम टिक लेबल्स। और प्लॉट है एक्स, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का ही है, सेम जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। तो लाइन विड्थ 2 है, ठीक है। तो एक्स से जो लेबल है वो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा मतलब याद रखो अल्फा कैसे लिखना है, अल्फा लिखने तरीका आना चाहिए, डॉलर के बीच में और उल्टा स्लैश अल्फा, ठीक है, उल्टा स्लैश बीटा। इससे लिखोगे तो वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा रहेगा। अब जो साइन इसके लिखने का, वो साइन 11 दिया हुआ है डिफॉल्ट, मैं इसको चेंज कर दूं,
कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा साइज हो गया। 14 मतलब लाइट वीकेंड बनी थी। तो साइज जैसे भी करना साइज मॉडिफाई हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज अल्फाबेट का टाइप हो जाएगा। अल्फाबेट का टाइप चैलेंज, ठीक है, पांच जो आ गया अपना। और वाई टिक पे 0 से 150 तक है। 0 50 तो क्या क्या लेवल करना लिख दो, जो जो हमें चाहिए। और सेट वाई टिक्स और वाई टिक्स, ओके। तो ये वाई टिक करने से इस पे सेट हो गया 0 से 50 तक। वाई टिक मैंने डिफाइन किया कि ये पांच आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वाई टिक्स हो सेटिस्फाई हो गया। तो हाँ, डिफरेंस है इसमें भी। यहाँ पे एक्स पे मैंने ये किया और यहाँ पे ये किया, तो लेबल्स अलग अलग है यहाँ पे, ये अलग डिफाइन, एक दोनों चीज अलग है। यहाँ पे मैंने वाइट टेक्स्ट की है, मतलब ये पांच चीजें आएंगी, ये चार चीजें आएंगी, और इसको लिखने से वो आ गई। और बैटरी लेबल्स, मतलब इसका मतलब ये .1 F मतलब पड़े होंगे। मतलब .1 F मतलब वो और क्या बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म में वन प्लेस तक डेसिमल आएगा। 0.0 0.0 0.0, ठीक है। और वाई जैसे यहाँ पे मैंने तो 15.44 लिखा, 50.4 आएगा, मतलब वो एक ही प्लेस .1 F को मतलब एक ही प्लेस है, ठीक है। इसके अनुसार वो ले लें। और लेटेक्स फॉर्मेटेड लेवल से लेटेक्स, ठीक है, सेकेंड डे में जानोगे कि लेटेक्स एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अपने असाइनमेंट करते थे डी से, तो ठीक है, वो आगे सीख लूंगा लेटेक्स। तो इस तो लेटेक्स में लिखा रहता है। और अभी के लिए देखो कि डॉलर के बीच में उल्टा स्लैश अल्फा इस सब लिखे तो आ जाएगा वो। बाकी आगे चीज़ बाद में पढ़ाऊंगा। और साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, जैसे ये 10 पावर स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, इस सब में लिखेंगे तो एक्स डॉट सेट टाइटल साइंटिफिक नोटेशन लिख देंगे, इससे वो साइंटिफिक नोटेशन आ जाता है। और सेट टेक वही है 0 50 आ गया, और साइंटिफिक नोटेशन में .5 आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और फॉर्मेटेड पे यूज मैथ, ठीक है। और मैं इसको पॉज करके देखो, यूज मैथ टेस्ट। मैथ टेस्ट को अगर मैं पॉज करके देखूँ तो इस फॉर्मेट है मैथ। तो ये देखो 1 E2 टेन के 1 E2 मतलब 10 का स्क्वायर। तो मैं टैक्स अगर मैं 2 कर दूँ तो इसको मैं 10 का स्क्वायर। तो मैथ टेस्ट मैंने 2 किया तो उसको मैं अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो 1E2 फॉर्मेट है। और 1E2 मतलब इंटू 10 का स्क्वायर है। और ये हो गया इनपुट पिकर, ठीक है। और पावर लिमिट -1 to 1, एक्सिस मेजर एक्सिस फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट, ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं। इंपोर्ट मैटलिब, ठीक है, ये हो गया, इंपोर्ट कर लिया। मेजर साइड 5 5 तो हाँ, इसमें एक चीज बतानी थी, ये अगर मैं इसको मिस कर दूं गलती से भी, इसको बनाने दो, तो ऐसा आता है एक ही पॉइंट पर जाना। तो जो चीज है, लाइन स्पेस एक्सटेक डॉट मेजर पैड, मेजर डॉट पैड, तो ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं मेरे साथ। और लाइन स्पेस ही हमने, लिन स्पेस हमने कल देखा था, जिससे थैंक यू में आ जाएगा। और लेबल एक्सेस स्पेसिंग, ठीक है, पैटर्न यहाँ से आ गया, एक्सेस 50, कुछ जरूरत तो नहीं थी उसे। तो ठीक है, यहाँ पे गलती यहाँ पे हो रही थी तो सही कर दिया। 0 से 200 में तो यहाँ पे ला देना, यहाँ पे बस एक फिगर आएगा वाले की, कोड, ठीक है, सो गया। और मैं अगर पैड को चेंज कर दूँ उसको, यहाँ पे फिगर बना के देखो, चेंज क्या आएगा वाले के, फिगर डॉट्स को फिर फिगर लिखना था। लेकिन से भी
ओके, एक्स सिक्स लेवल particular level padding between axis level and axis numbers. Okay. Subplot. Unfortunately, when saving figures, the labels are sometimes clear and equal this of original or specific subplot. ये तो यहाँ पे हम पोजीशन एक्सेस लिटिल बिट ऑफ पोजीशन एक्सेस और हमें एडजस्ट करने के लिए मैं वैसे बटन आती इससे पर प्रॉब्लम आई थी, तो उस प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही थी, इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रॉपर यूज करेंगे कि कहाँ से ये चीज ऊपर नहीं थी इसलिए ऐड आया था, वैसे में नहीं आया। और यहाँ पे अगर मैं इसको बताना पड़ेगा लेफ्ट राइट। ओके, जैसे यहाँ पे ये फीचर्स वाला था प्लॉट एडजस्ट 0.15 लेफ्ट वाला, 0.5 साइड फिर फीचर से देख सकता हूँ, बॉटम 0.1, टॉप से 0.9, तो लाइक दैट। और चेक कर देखते हैं क्या आता है। तो मिल गया, चलो, तो थोड़ी बहुत चेंज होती है, तो लिखना था, तो देखते हैं। तो स्लाइटली जो चेंज होता है, ठीक है, तो ये सब फीचर्स हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेस ग्रिड, मान लो ग्रिड फॉर्म में चाहिए तो कैसे करेंगे? तो 1 to 1 रो 2 कॉलम फिगर 10 to 10 3, ओके। तो एक्सेस 0 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लेंथ विथ 3 है, ठीक है। तो ग्रिड इंप्रूव करते हैं मैंने, तो ग्रिड फॉर्म में आ जाएगा। एक ग्रिड सॉलिड लाइन था, अगर मैं चाहता हूँ डेथ लाइन हो जाए तो इस फॉर्म में आ जाएगा, डेथ लाइन में। और यहाँ पे जो कलर ब्लू अल्फा 0.5 है, ठीक है, पार्क वेरिएबल अगर मैं इस अल्फा बढ़ा दूंगा तो जो लाइन है वो ब्लू काफी ऐसे दिखेंगी, तो देखो लाइन ऐसे दिख रही है। तो मैं चाहता हूँ ग्राफ ज्यादा विजिबल हो, एक्सिस पे इतना ध्यान ना, मतलब इतना ना जाएगा, मैं उसको ट्रांसपेरेंट कर दूँ ताकि मेन बड़ा फोकस जाए। स्पाइंस क्या होता है, ये लाइन होती है स्पाइन को, स्पाइंस बॉटम में कलर चेंज करना, बॉटम का ब्लू हो गया, टॉप का ब्लू है, तो इसका रेड है, ठीक है। तो लाइट सेटेड इससे हो जाता है। और ट्विन लाइंस, जैसे मैं दो डबल साइड चाहिए, इसके लिए जैसे एक्स स्क्वायर लाइन विथ टू और कलर ब्लू चाहिए, और सिमिलरली एम स्क्वायर, ये लिखना कि हम एरिया इसको यहाँ पर होना चाहिए वाई लेवल, तो और इसका लेवल होना चाहिए आप क्यूब, तो ये देखो ये होना चाहिए। फॉन्ट साइज भी और चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लू है यहाँ रेड है, तो लाइक दैट वी कैन राइट इट फॉर फ्रंट डबल दोनों से चाहिए तो एक्स वाई एक्स। ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ ग्राफ प्रिंट करना हो इसके लिए मैं ध्यान से देखो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मैं तो डिटेल में ही बता रहा हूँ क्योंकि ये सब यूज इतना आता नहीं है, एडवांस चीज है, और इतना हम पूछेंगे भी नहीं ज्यादा। पर देख लो, मैंने 0.75 फॉर 100, ठीक है, तो लाइक दैट एक्स 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 ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, अभी एक्स क्यूब है, इस तरह बन रहा है, वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर 0, ठीक है। तो for other 2D plots in addition to number of functions for generating this is backwards NP 0 1 2 3 4 5 where बन गया 1 2 3 4 5 plus तो 1 4 यानी, तो एक दो चार कॉलम आगे, ठीक। और वन पे 12/3 का है, और एक्स 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 प्लस दिस और रैंडम, ठीक है। तो ये सब फीचर्स होते हैं इसे करने से, स्कैटर फॉर्म में आ गया, यहाँ पे स्टेप फॉर्म में आ गया, यहाँ पे बार फॉर्म में आ गया,
और यहाँ पे फिल बिटवीन फॉर्मूला, तो एक डिफरेंट टाइप है, तो हमें काम होगा अलाइन सेंटर, तो अलाइन सेंटर से इस तरह दिख रहा है वो, जब मैं इसमें करूँ तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है, कंट्रोल दो। तो इतना चेंज हो सकता है तो बेस्ट, तो एक्सेस दिस कंसिस्टेंट ब्लू ग्रीन, इसको मैं जैसा नंबरिंग देख सकते हो, इसको नंबरिंग की गई है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स टू, लाइक दिस, जीरो पे जीरो। ओके, तो मिड चेस्ट का साइज और फिर अंदर और ओके, so you can just look at it, so यहाँ पे ये दो रो तीन कॉलम टाइट लेआउट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो 3300 कलर स्पैन, तीन रो, यहाँ पे 00 पे कलर स्पैन दिस है, सॉरी, कोल स्पैन तीन, यहाँ पे तीन तीन 10, 00, 01 और 00, 10, 12, 20, 21, तो लाइक दैट इज तो चल रहा है। तो ये सब देख लेने से समझ आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। और जो भी स्पेक और मैटप्लॉटलिब स्पेक, मैंने इसको, ये भी एक मैंने एक मैटप्लॉटलिब में होता है, मैंने कहा इसको इम्पोर्ट कर, फिर बाद में इसको मैंने देखा 2 3 का है, तो 2 3 होगी, हाइट स्पेस रेशियो दिस, तो ये सब देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दिस यू कैन लर्न एंड सी। ऐड एक्सेस, जैसे मुझे खुद से एक्सेस ऐड करनी है तो इस तरह, जैसे मैंने बताया था, कुछ स्टैट लेआउट ले लोगे तो प्रॉपर इतना नहीं मिलेगा तो मुझे, तो एक्सेस लिमिट में डाल दी यहाँ पे, फिर यहाँ पे अब एक्सेस लिमिट डाल दी यहाँ पे, सो लिमिट, दिस यू कैन सी, दिस इज जस्ट ये कौन सा ग्राफ में कैसे मिल रहा है, तो ये सब तुम देख सकते हो, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। और कलर मैप है, काउंटर फिगर्स, जहाँ पे देखो इस फॉर्म को फिगर चाहिए होता है, तो 0.7 है, 5 टाइम्स स्टार्ट। ओके, लाइन स्पेस, तो डिफरेंट चीज है, मैं ये सब सेट करना होता है कुछ, जैसे मैं चाहिए तो सबसे करूँगा, फाइनली मैं ऐसा फिगर मिल जाएगा। यहाँ पे कलर भी मेरे को रेड ब्लू, RDB का मतलब होता है रेड से व्हाइट से ब्लू, रेड से व्हाइट से ब्लू, रेड रेड, यू कैन सी दिस कलर, तो दिस इज समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा ही हो रहा है इन, सो बाई लीनियर, सो लाइक इंटरपोलेशन बाई लीनियर, ठीक है। काउंटर काउंटर फॉर्म में चाहिए, जैसे काउंटर जानते हो क्या होता है, जिस फॉर्म में चाहिए तो जैसे सिस्टम और ऐसा है, 0101, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, 0101, 3D figures में सरफेस प्लॉट्स। ओके, सो दिस यहाँ पे देख सकते हैं 1 2, ठीक है, और इसमें 3D में वाट है, जिससे फीचर्स है, लाइन में जीरो कर दी मैंने, तो यहाँ पे देखो 1 to 1 है, मतलब एक रो दो कॉलम और वन, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने सेट कर दिया इस पे, तो मुझे ऐसा मिला। और मैंने प्रोजेक्शन 3D की और आर्ट राइड इसको ने अलग पे सेट किया, यहाँ पे एक कूल वार्म में मतलब कलर फॉर्म कर था, कूल वार्म, तो मैंने कलर इन्फ्लुएंस वॉल्स के स्ट्रिंग 0.5, तो फीचर से डिफरेंट हो, सेट करो डिफरेंट, वाई फ्रेम, मुझे वाई फ्रेम में चाहिए कुछ तो होता है इसका, तो डिफरेंट चीजें सही आप होता कर देख सकते हो। और जैसे यहाँ पे 4 की जगह 7 कर दो, उसी,
थोड़ा बहुत सीधा रहता नहीं। देखिए देखा, तीन दिखा पे, यहाँ पे यहाँ पे ऐसा आ गया था, जहाँ पे 20 करूँगा तो काफी लाइट हो, काफी लाइट हो गया, और लाइट हो गया तो लाइक दिस यू कैन सी इस तो वो मॉडिफाई हो रहा है, यू कैन सी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आता है पर मैं जैसा चाहिए उस सबसे मिल जाएगा। यहाँ से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा फिगर कैसा हो रहा है, इसमें तो आइडिया मिल रहा है कि फिगर सब कुछ होना चाहिए लाइक दैट। काउंटर प्रॉब्लम प्रोजेक्शन, काउंटर प्रोजेक्शन चाहिए तो यू कैन सी हाउ दैट बॉडी इज फुल वार्म है, ठीक है। तो फुल वार्म कलर प्रोजेक्शन मिला, फुल वार्म कलर। ओके तो लिमिट मैंने मैं सेट कर दी है 0.5, ठीक है। तो लाइक दैट सेकंड डेटा लिमिट एक्स वाई जेड। ओके so I'm moving for seaborn. seaborn control aesthetics तो मैंने सबको पहले import कर लिया। उसके बाद फ्लिप वन है, फ्लिप वन को मैं जहाँ पे फ्लिप वन है आगे मैं चेंज कर देता हूँ। और लाइन स्पेस 014 तो 0 से 14 में होगा, ठीक है। और रेंज 1 to 6 यानी सेव होगा ये, वन आई की 6 वैल्यू, 1 से 6 तो 6 वैल्यू रहेंगी। और जो ऐसे साइन का ग्राफ बनेगा तो आप पी का प्लॉट देख तो 6 ग्राफ बनेंगे, 6 मतलब वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 6 बन गए। और फ्लिप, यहाँ पे फ्लिप, ठीक है, यहाँ पे फ्लिप वन है, यहाँ पे चेंज होगा, वहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा। साइज 20 को डेटा में ये सेट कर सकता हूँ। उसके बाद साइन प्लॉट, राइट साइन प्लॉट मिल गया। और ऐसे ने सेट का मतलब ऐसे करने से क्या होगा, जब भी हमारा कोई ग्राफ अपने कुछ ऐसे लेवल पे आके जहाँ पे अटक गया तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे ने सेट से वो सी के डिफॉल्ट जो होता है उस पर आ जाएगा, जो डिफॉल्ट फीचर्स होगा उसका उस पर आ जाएगा सीधा। तो इससे अभी तक क्या हो रहा था, तो ये जो साइन प्लॉट बना था वो अकॉर्डिंग टू मैटप्लॉटलिब के डिफॉल्ट होगा, मैटप्लॉटलिब बाय डिफॉल्ट मैटप्लॉटलिब होता है। तो अगर तुम ऐसा करो जनरल बना दोगे सीधा तो मैटप्लॉटलिब के आधार पर देंगे। लेकिन जब मैंने एसएनएस सेट कर दिया तो उससे क्या होगा, सीबॉर्न के डिफॉल्ट आ गया। अब सीबॉर्न के डिफॉल्ट से साइन मेरा पैसा बनता है, सीबॉर्न के डिफॉल्ट में ऐसा बनता है। और तुम जनरल कर दोगे तो मैटप्लॉटलिब फॉर्म हो जाता है। तो कैसे पैरामीटर्स इनटू टू डिफरेंट ग्रुप, द फर्स्ट ग्रुप सेट द स्टैटिक फिगर्स लाइक दिस, ठीक है। सो टेक्स्ट स्टाइल में डार्क किया तो बैकग्राउंड देखो कैसा हो गया, और वाइट किया तो बैकग्राउंड देखो कैसा हो गया। डार्क ग्रेड में ऐसा ग्रेड आ रहा है, वाइट ग्रेड में ऐसा ग्रेड आ रहा है। फिक्स मैंने किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, बस लिखा हुआ है। तो मैंने टिक्स ऑन किया, फीचर्स टिक लगा दिया तो ये सब आ रहा है, ऐसे सब आ गया। सो दिस आर द फीचर्स। डिस्पाइल करने से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये जो था ये वाली लाइन, ये लाइन हमें नहीं चाहिए, बॉक्स ही चाहिए, तो हम इसको डिस्पाइल कर देंगे, इससे क्या होगा वो लाइन हट जाएगी। और ठीक है, फीचर इसमें ऑफसेट टिप ग्लोबल, मैं यहाँ पे टिम टू वाली चीज हटा दूँ तो क्या होगा, तो देखो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और मैं टिम को मुझे इस फॉर्म में ग्राफ भी चाहिए, टिम चाहिए तो इस फॉर्म में टिम होके आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑफसेट को हटा दूँ, जैसा हो गया। ऑफसेट को लगा दूँ, इस फॉर्म में आ रहा है। तो यू कैन से दिस, डार्क रेड चाहिए तो डार्क रेड का आ गया, और लेफ्ट इज इक्वल टू 2। ओके यू कैन से दिस, ओके। और डार्क बैकग्राउंड डार्क हो गया, और साइन प्लॉट
जीरो फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब क्या क्या फीचर्स है सेंस स्टाइल के, तो वहाँ पे लिख सकते हो, जितने भी उसमें मिल जाएंगे। फेस कलर, एज, एक्सेस लेबल, तो दिस आर द ऑल थिंग। लाइक यहाँ पे अगर मैं एक्सेस कलर तो फेस कलर तो 0.9 फिक्स करता हूँ, और तो यहाँ पे साइन प्रोडक्ट सब कुछ आ गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे मॉडिफाई दिखेगा 0.9, एक्सेस डॉट फेस कलर 0.9। ठीक है, जैसे ने सेट मतलब मैंने वापस से डिफॉल्ट मिला दी। और सीबॉर्न में और टर्म देखो, पेपर, नोटबुक, टॉर्क, पोस्टर, ये सब क्या क्या मतलब होता है इसका। और एलिमेंट फॉन्ट, ठीक है, पेपर दिस स्टाइल ऑप्टिमाइज फॉर माय स्टूडेंट एडमिट फॉर डॉक्यूमेंट, notebook this different notebook like this talk or presentation talks from your of your poster of getting larger higher than slots। ये सब जनरल मतलब है इसका। मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ, पेपर फॉर्म में, टॉक फॉर्म में, पोस्टर फॉर्म में। पोस्टर फॉर्म में तो मैसेज चाहिए होता है, वो दूर से भी दिख जाए अच्छे से। प्लॉट फीचर और इसमें लाइन विड्थ को चेंज 2.5 कर दिया, तो लाइन विड्थ यहाँ पे हमें चेंज होकर 2.5 देखेगा। लाइन विड्थ 2.5, 8 लाइन विड्थ लाइन और लाइन विड्थ चीजें। कलर कलर्स अवेलेबल है, यू कैन सी से सेट्स और डिफॉल्ट लाके दिस ब्लॉक, यू कैन सी द फीचर। वांट दिस व्हिच यू कैन सी वी ओपन। केडी क्या होता है, कलर डेंसिटी एक्सप्रेशन द टेस्टमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। केडी इक्वल्स स्मूथ or plus implement visualize the distribution of data points along a single axis. It displays small vertical lines or text along the axis for this. Okay. So here you can see this picture. यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने केडी को फॉल्स कर दिया था, लेफ्ट को टू कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल, तो नॉर्मली ऐसा आया, और मैंने यहाँ पे केडी को फॉल्स करके लेफ्ट को कर दिया। यहाँ पे केडी 20 20 फॉरवर्ड मॉडिफाई किया मैंने, तो यहाँ पे वैसे चेंज हो गया। तो इस तरह को मॉडिफिकेशन करने से चेंज हो रहा है। तो डेंसिटी दिस केडी प्लॉट स्टेट टू स्टेट है, स्टेट होगा जैसे यहाँ पे बीच का एरिया है, मैं इसको शेड करना चाहता हूँ, यहाँ पे शेड को टू कर दो, शेड हो गया लाइक दैट। जैसे आपको मुझे एडजस्ट करना है, कैसे कैसे हो सकता है, कैसे मॉडिफाई हो रहा है। जैसे ओरिजिनल ग्राफ यहाँ पे -3 से 3 में था, तो ऐसा ग्राफ से वाला मैंने तो उसको ऐसा लिखा, तो लेवल 2 और इसका 0.2, तो ऐसे ही मॉडिफाई हो रहा है, स्टेप से मॉडिफाई हो गया। These are different things that you can see। तो चीज नहीं है, जॉइंट प्लॉट में जॉइंट को दिखाना चाहता हूँ टीम में, तो ये सब चीजें हैं जो देखो, करना देखो, तो इसमें तो कुछ ऐसा रटने का नहीं है, बस सिर्फ देखने में कैसा चेंज होता है। एक्चुअली मैं बस फीचर ही दिखा रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है, तो समझाने ऐसा ज्यादा है नहीं। और ये देखो जॉइंट प्लॉट, इस फॉर्म में कलर डेंसिटी, जो कलर डेंसिटी कलेक्शन प्रोसीजर दिस टाइम वाज दिस यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस। हिस्टोग्राफर का पहले ऐसा था, ऐसे ऐसे, तो हम वो इस फॉर्म में आ गया। और ये देखो इस जो ये डेंसिटी देखते हैं, जैसे बीच में डेंसिटी ज्यादा है, बाद में कम है, इस फॉर्म बीच में ऐसे, बाद में ऐसे हो रहा है, दैट इक्वल्स ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड।
because fault हो गया तो authentic हो रहा है बिल्कुल या तो क्लिक जैसे ये ग्राफ है तो like this you can open a lot of things using seaborn जैसे यहाँ पे you can just save it so this is something here just look at it how we can open a different thing even though we just मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया वाइट ग्रिड और कलर को टू titanium reference load data set titanium feature is to be open from our 2000 if this is पैसे ना पैसे तो मैं डिफरेंस मिल रहा है titanium यहाँ पे देखो किस फॉर्म में तो सब चीजें हैं जो मॉडिफाई हो रही है सेक्स मेल फीमेल ऐसा लाइक डेटा फॉर्म कैसा चाहिए उसके डिपेंड करता है वो कैसा मॉडिफाई हो रहा है तो लाइक दिस यू कैन सी जहाँ पे आ गया तो ये मॉडिफाई कर सकते हैं ये फिर वो ये अगर जस्ट बैलेंस प्लॉट करने पड़ गया तो वाली चीज तो दूसरा तो भी लिंक से कहीं समथिंग तो वही चीज है जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है स्प्लिट तो कर दिया मैंने तो मतलब स्प्लिट हो गया वो तो देखो स्प्लिट कैसे हो रहा है टोटल बिल पहले है तो यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है तो लाइक दैट मैं अल्फा 0.5 कर दिया तो ट्रांसपेरेंट आता है ठीक है तो यहाँ पे वैलेंट प्लॉट सॉम प्लॉट दो दो तो सॉम प्लॉट हो गया ये वैलेंट प्लॉट हो गया तो हाउ दे ओवरलैपिंग color whiter from for whiter so like that we can say a lot of features so survived here titanium so you can see the titanium data you can say a lot of things with titanium data is also from the plot tag class data titanium so there are a lot of things you can see here. So this you can see a lot of things like this तो उसको बस अच्छे से देख लेना एक बार कैसे कैसे चीजें हो रही है तो ऐसा कुछ ज्यादा समझाने का मतलब नहीं है तो देख के सीखोगे करके so a lot of things you can do तो सी वन टू समथिंग काफी फीचर देखे हमें कैसे ऐसे ओपन हो सकता है ओके अगर तो यू कैन कंटिन्यू पार्ट Hare Krishna. I hope my screen is visible. So
Somebody was asking what is the meaning of the numbers 0.1 and 0.2. Was it referring to this one here, 0.1? ये just okay, I think he has. टेंस 0.51 मैंने बताया था, यहाँ से 0.5 यहाँ से 1 है, और 0.1 वाला वो एक्सेस लेफ्ट बॉटम वाला वो। हाँ, so I think that is clear. 0.1, 0.1 is basically from here to here, and the 0.8 is this width, and 0.8 is this height. And this 0.1, 0.1 is the coordinate of the left bottom corner. 0.1, 0.1. We'll quickly revise pandas and then move on. So pandas is also an important library. The main data structures that we'll be seeing in pandas is series and data frames. So series is basically a set of data with where it is numbered with index, and then a data frame is like a table where you have two indexes, row number and column number, kind of thing. You can create a data frame using a dictionary and a series using a list. You can create a data frame by reading a comma separated value file, that is .csv file, by using this function. And you have various functions. For example, this tail function will give you the last 10 rows of the data frame. So tail of 10 gives last 10 rows of the data frame. So df.describe will describe various things about the data frame. So here it's giving you count, mean, standard deviation, minimum, maximum, and so on. Similarly, there are various methods that you can do for series as well to get the maximum value, minimum value, mean, median, and so on. So similarly, these are the list of data frame methods. Head means first n rows, tail is last n rows, shape will give you the number of rows and columns, info, describe, columns, index, and so on. So you can get the data types of different columns. You can convert the columns into list by using this. You can describe it. You can get the maximum of every column. You can get the maximum of a particular column by writing df of that column dot max. And you can get the maximum argument. You can get a particular entry of the data frame. You can count the different values in a particular uh, column. So integer location based indexing, iloc. So you have that function as well. And the type, you can check the type what it returns. df.iloc, it returns a pandas series and a pandas data frame depending upon what you are giving to iloc. So similarly here you can see other functionalities of iloc. So here df.iloc of 3, and here you can see df.log of 3. That means here 3 is not included, here 3 is included. So that is a difference between these two things. Here it's giving 3 rows, here it's giving 4 rows. So it is 0 to 3, 0 to 2. So the add function is also there. So it is, so when we know the row label and column label and we want to get a particular value, you can use the add function directly. And we can sort the values in the data frame. We can filter rows by using conditions. So this is similar to the um, NumPy way of use. Yesterday we had seen we can give a condition within this. So whichever for whichever values it is true, those will be only printed. So similarly here it works. Grouping also is similar.
and you can iterate through the data frame by just writing index comma row in df dot iter rows. So this will go row wise automatically for index comma row in df dot iterate rows. You can extract rows and columns. So if you want only these two columns, you can write them, and dot head means the first 5 columns. If you don't put anything in the if you don't pass any parameter to head, it will print the first 5 rows. So this is all similar. And data cleaning is uh, so to check which where null values are present, you can write df dot is null. So is null will return true or one where wherever it is null. So dot sum means it will sum all the um, places where it is null. So it's basically counting the number of places where it is null. So 0 means there is no null value in the column season, and so on. Drop na means it drops all the rows that have missing values or uh, values na, that is null values. And fill na means it allows you to replace the rows that have missing values with the values that you pass on. You can fill values wherever it is having missing values. So this is about pandas. So you can go through in detail whoever missed the session on that day. This was a brief overview of it. So there are basically two things: series and data frame, and there are various functions that you can do on them. So that is all. But it is very important because of its usage in various fields. It becomes a very useful library for many applications. So that is why it is important. Otherwise, it's a simple library. So so will is my screen this linear regression visible? So yesterday we had discussed the theory of machine learning. So here today we'll see the code of one example. So yesterday we had seen the mathematics or the background how simple linear regression is calculated by scikit-learn. So today we will see the code for multiple linear regression. So multiple linear regression means first of all, what is multiple regression? Multiple regression means there are more than one independent variable, x1, x2, xi. And linear regression means it is a linear combination. So it is linearly related. So for a multiple linear regression, the uh, Python or basically scikit-learn will try to find this kind of a function which is best fit to the given data set. That means the error is minimized or r square is maximum as maximum as possible. So so today we'll see an example of this multiple regression. So the mathematics behind this will be automatically done by scikit-learn. We don't have to worry about it. So this maximization of this beta naught, so to maximization of the r square by finding beta naught, beta 1, and so on will be done automatically by scikit-learn. So the general procedure for writing any this kind of regression a problem is to solve any regression problem is to first of all explore the data. So first thing is we import libraries. Uh, of course, we need to import pandas because we are dealing with data because we are dealing with data that consists of various features, like there are x1, x2, and so on, and then y. We have an entire data set containing the values of x1, x2, xi, and y. So we have a table kind of thing. So that is best dealt in the form of data frame. So pandas is important, and again numpy is important to do various operations on them, and then matplotlib to visualize, uh, and seaborn also to visualize in the form of graphs and get insights. So these four libraries are very important when we are dealing with um, data analysis and machine learning. So we import them first. So this percentage matplotlib inline is basically this allows the graphs to be visible in your Jupyter notebook. So for that we are writing this.
So once you import them, we will explode the data. So I have a uh, comma separated file called as USA housing. So it should be in your same directory that you are working in. Uh, so then only you can directly access it by simply by writing the name. Otherwise, you will have to write the path. I hope everybody remembers this, how to access the file. The similar thing was happening in open when you're opening to open a file, right? So similarly in pandas, you have the read CSV function. Um, it was there in the previous pandas slides also. Read CSV, and then we are storing that whatever the object it returns as USA housing. So it will return a data frame. We know that pandas, upon reading a CSV file, will return a data frame. So we'll see what is there in the data. So we'll see the first 5 columns by writing head. You can see that there is the data of various houses in USA. So the average income of the people in that area, what is the age of the house, what are the number of rooms, number of bedrooms, and the population of the area, and what is the price of the house, and what is the address of the house. So this is what is present. So in this problem, we want to estimate the price of a new house whose all these details are given. Uh, Area income is given, age of the house is given, number of rooms and bedrooms, and population of the area is given. We need to estimate the price by using the given data. So, that is our aim here. So we'll dive more into data to get insights. So we'll see information about the data frame. So there are these 6 columns, and and non-null count. So it is showing that there are 5,000 entries in this data frame, and all are and they are non-null entries, 5,000 non-null entries. And so all these are float data type. Float 64 means 64 bits or 8 bytes, and then this address is an object. That means it's a string object, you can say. So if you write describe the data frame, it will describe it by showing you the count. So there are 5,000 entries in each column. What is the mean, what is the standard deviation, minimum, maximum? So in price, you can see that the average price is how much? The average price is around 1 lakh, right? Into 10 power 6. So it is 1 lakh, right? So average price is around 1,23,000. So whatever is the unit, it might be US dollars. So um, I'm not sure. So it is the number is 1,23,000, and then standard deviation is similarly 35,000 approx. And then so you can see the data here and get insights that so on an average prices are around 1 lakh, and and most of the houses in the area are around 6 years old, and there are almost 7 rooms in each house, out of which 4 are bedrooms, and the population is approximately around 36,000, and the people of this area have income approximately 70,000. So you get an insight into the data by describing it, and by writing columns, you get what are the columns present in the data frame. Now we plot some graphs to get insights into that. So we use SNS, means here we had done import seaborn as SNS. So we are accessing the functions of seaborn. So SNS dot pair plot USA housing comma uh, this one. So pair plot means it plots every pair of columns. So once you get the output, you will be able to understand it. So this is the pair plot. So you can see that in the pair plot, every all the 6 columns are plotted against all the 6 columns. So you can see the relationship between any 2 columns. So that is the meaning of pair plot, which is very useful.
Here we are trying to uh, uh, talk about the price. So we'll see how price is varying. So price varies with area income. So approximately it is increasing with area income almost as a straight line. So you can see this kind of pattern. And with house age also it is increasing. It increases with the age of the house approximately linearly. And then number of rooms, as number of room increases, price increases. As the area of population increases, price increases almost linearly, like this. And then as the number of bedrooms increases, also the price increases. You can see that for 2 bedrooms the price is present all over this region, and for 4 bedrooms it is present all over this region. But you can see for 6 region the starting point itself is high. So you can uh, feel that the as the number of bedrooms increases, the price is increasing. So from this, we get somewhat an insight that there is linear relationship between various uh, between price, linear dependence between price and various other uh, features which are present here. You can use displot as well to get the idea about um, so we are talking about price, so we are using displot here to see how price of various houses is present. So so this is a this displot is basically um, a single it plots about a single column. It is not comparing any two columns. It is a univariate set of observations. That means it is talking only about price. So it is giving price versus count. So how many houses have price this much. So you can see most of the houses have price in the middle, up near to 1 lakh. Here is it 1 lakh or 10 lakh? I guess it is 10 lakh. Okay. Okay, yeah, it is 10 lakh. So most of the prices are uh, in the middle around 10 lakh. And then and then very few houses are having very high price or low price. So this is basically count versus price. So from this we understand uh, how the distribution of price is. And you can use a heat map as well to get the correlation between various things. So this black indicates or 0, or fully white indicates 1. That's why this diagonal is 1, because price versus price is the same thing. It's 1. So that is why all this diagonal is basically white. And then these colors indicate um, how the number, like the intensity of the colors indicates the numbers. So when it is fully black, it is like 0. Means very less as compared to this. So from this data analysis, by seeing the data frame and the various plots, you will be able to understand what kind of relationships are present and what method will be best for us. So from this, we had concluded that it is almost a linear relationship in price has linear relationship with them. So we are going to use a multiple linear regression model. So so first of all, we will uh, create the x arrays and y arrays. So as we know, we call x as the independent variables and y as the dependent variable. So we write y is equal to USA housing of price. So this will give the price column. So that is put into y, which is our dependent variable, and all other features are put into x. Now, so this is so we have splitted our data set or data frame into independent and dependent variables. So now, as we told yesterday, we are going to um, use the train test split method. That means we are going to split our data set into two parts. One we are going to use one for training and the second part for testing. So we can do this very easily without any effort by using scikit-learn. As mentioned yesterday, we will be importing scikit-learn, and from there we will import the train test split package. So sklearn is a scikit-learn is a library, and from there we are importing this train test split. And now using train test split, you can simply write train test split of x comma y and test size equals zero point 0.4 and random state is 101. So test size equals 0.4 means how much. So
So 0.4 is basically like out of 1. So 40% of the data set we are going to put for testing, and 60% we are going to use for training. So if there are 5,000 columns, so we had 5,000 columns, right? So in that, 2,000 columns will be used for testing, and I mean, not columns, rows. 2,000 rows will be used for testing, and 3,000 rows will be used for training. And this is random state, so that is just a parameter to control how this train test split is splitting which rows and for testing and which rows for training. So and then you will get four things. So first one will be x train, second is x test, y train, and y test. That means the x array, that means these features which are going to be used for training, and these features for testing, and then y train and then y test. So it will automatically split and give you these things just in one line of code. And now how do you train the model? Now you have the training data with you. Now how do you train the model? We want to do multiple linear regression. So we'll import the linear regression module from again scikit-learn. So here it is scikit-learn.model selection. Here scikit-learn.linear model. So from there you import linear regression, and then you simply write lm is equal to linear regression, and then lm.fit x train y train. So you call the linear regression and get this lm, and with lm you just write lm.fit x train y train. So here what you are doing is you are so what does scikit-learn do in the background here? So you are passing the x training x data and training y data, and it is trying to fit this data into the linear model. So in this step it is actually finding the values of beta naught, beta 1, beta 2, beta I, such that the error is minimized. So that entire big mathematical calculation is done just in one line of code. So everything is inbuilt by using the scikit-learn library. Suppose you wanted to write this calculation on your own by using simple Python or simple arrays and all this, then it would have been very difficult. So, but because of the presence of this scikit-learn library, where everything is already done for you, you can just write in one line that fit this model in like lm.fit x train y train. So it will automatically find your beta naught, beta 1, and so on up to beta I, which are the optimum values for minimization of error. So that's it. You have trained your model. It has found your beta naught, beta 1, and so on. Now you can just test your model. That is basically model evaluation. You can see the values also, like lm.intercept. So what is intercept? Beta naught is the intercept, right? Intercept is a constant. So beta naught. So if you want to see the beta naught value, you can just write lm.intercept. So this is the value of beta naught minus 2,64,000. Sorry, 26 lakh 40,000. Similarly, you can get the other coefficients, that is beta 1, beta 2, and so on, by writing this lm.coefficients will give you beta 1, beta 2, and so on. So here you can see the coefficient of area income is 21.52, coefficient of house age is this much, and the number of rooms is this much. So you can see the different coefficients that it has found. So this coefficients, what is the meaning of coefficient? It's like the slope, right? So if there was only uh, one variable in a simple linear regression, what we saw yesterday, so that coefficient will be basically like the slope. So what is the physical meaning of it? So it indicates a unit increase in area income is associated with the increase of 21.52. So slope is like delta y by delta x, right? So if delta y by delta x is 21.52, it means delta y will be 21.52 when delta x is 1. So an unit increase in area income is associated with increase of 21.5. So this is what is the interpretation of the coefficients, or the meaning of coefficients. So we have seen that our model has done the work. Now we see the predictions in our model, and we will evaluate it. That means we will test it. So
So now we are using those coefficients, we are asking our model to predict the values for the x test. So we know the values of y test. We are asking it to predict for x test so that we will compare these predictions with the y test and check how accurate our model is. So lm.predict x test will give you the predictions of the x test. And you can plot those predictions against y test. So we are plotting scatter plot, plt.scatter. This is plt means matplotlib. So you have seen this y limit and x limit. You can set the limits. You can plot different kind of graphs. Here we are plotting scatter plot with blue color, and edge colors are dark blue and this. So we are plotting y test versus predictions. So y test are the actual values and predictions are from here, whatever our model has predicted for the testing data. So you can see that uh, our model has given almost good values, like it is close to the straight line y equal to x, right? So all the points are close to the straight line y equal to x. So if our predicted value is 0.5, then the actual value is also close to 0.5. So our model is quite good. As you can see, it is almost close to the straight line y equal to x. So you can get the actual values of various you can see the this plot as well, the price. So these are so this is the predicted prices um, for the testing data. So you can see this is also similar to the actual data which we saw. It is higher in the middle region, and I mean, we are plotting here y test minus predictions. So we are plotting y test minus predictions. That means we can see that here it is closer to 0. That means y test minus predictions is closer to 0. Most of the values are close to 0. So that means uh, y test is most of the values of prediction is close to y test. So our model is quite good because most of the values are close to the expected value. We can see the actual values of the various errors by importing metrics from scikit-learn. So you can see how scikit-learn is very useful even for calculating various errors. Directly we have a package and just import it and write in one line different errors which you want. So mean absolute error, mean squared error, and a metrics dot mean squared error. So you can see the mean absolute error is 82,000 and root mean square error is uh, around 1 lakh. So for a price of 10 lakh, it is giving an error of approximately 1 lakh. So it is giving the correct prices of houses within a variation of 1 lakh, where the prices of a houses is of the order of 10 lakh. So it is a good result. But if you want to improve it further, you will have to use other types of regression or better ways of training your data, training your model. You will have to use other regression methods. Maybe multiple linear regression is not enough. So in this is how you analyze your data and get your predictions. So everything, the entire machine learning and then evaluation, everything is done in very few lines of code by using scikit-learn. So I hope this is clear. Does anybody have any doubt? No doubt. Okay. So we have released the programming assignment. Everybody join it and do it. Like uh, again, we have not given it very tough. We have given it of medium level. So those who have started programming and those who are you are so every it is like everybody can do it. So we have given 2 days. 2 days is also more than sufficient. So it is not very tough. It is not very easy as well. It is okay. So you can, if you give if you do it with proper interest, you can do it very easily. So so
keep checking your Google Classroom. Very many people, like almost everybody, joined very late, like after 12, after I put my message in the WhatsApp group. So keep checking your Google Classroom and and do it. Okay, do the programming contest, and after the programming contest, we'll give you the final task, and that will be done. So I hope the boot camp was good. You got, I think you got something good from the boot camp. Um, we try to do our best to help you be about various things about Python and machine learning, various libraries, and we have shared the resources. I hope it was a good experience. You learned something good. So anybody can give their reviews or any suggestions or anything, any comments. Hans Prabhu, you can add something. We thought that the I not very fast student because लाइब्रेरी पार्ट ऐसा है कि पूरा चीज मुझे भी याद नहीं है, मतलब ऐसा है कि पूरा याद करना नहीं होता, बस चीजें देखना होती है किससे कैसे काम चल रहा है। और बेसिक डेफिनेशंस मैंने बता दी थी कि इसका क्या मतलब, बेसिक क्या होता है। और बेसिक चीज क्लियर हो, बाकी हमें कैसे भी करना हो तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने काफी फास्टली आगे किया था, स्टार्टिंग में तो स्लो चला था, बाद में तो ये मैं सोच रहा कि मैं बहुत फास्टली पढ़ाई गया, क्योंकि लाइब्रेरी से ऐसे पढ़ाऊँ तो मैं 4-5 घंटे में खत्म नहीं होगा। बस एक लाइब्रेरी सीबॉन में देखा है तो हर एक की चीज इतना वास्ट होता है। तो बेसिक चीजें बस क्लियर रखो अपना, बाकी जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वो नहीं। लाइब्रेरी से ऐसा है कि रटने के लिए नहीं होती है। जैसे फंक्शंस और पढ़े थे हम लोग, वो चीज थी वो हमें पता होना चाहिए, उसके बिना हम कर नहीं पाएंगे, कोड ही नहीं लिख पाएंगे, लूप वगैरह। तो बेसिक चीज हमने आराम से पढ़ाया था। लाइब्रेरीज मैंने काफी फास्ट पढ़ाई, तो करना पड़ा क्योंकि बहुत वास्ट थी, काफी चीजें होती है उसमें। तो ये थिंग था जो मतलब मुझे लगा कि प्रॉब्लम होगा, बट ठीक है, यू कैन, जैसा नीड हो वैसा यूज कर सकते हैं लाइब्रेरीज को। काफी चीजें हमने कवर की है इसमें, मैंने अपलोड भी कर दिया। तो ऐसे कोई और डाउट हो तो कैन आस्क, और कमेंट भी कर सकते हैं। वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिव्यूज, फीलिंग हैप्पी। Yeah, obviously you can continue Python in future. It's a very vast language. You can do a lot of things within Python. I think last few classes were on the applications only, what you can do on Python. Otherwise, the basic coding was the common in all languages. Okay. Thank you for your comments. And uh, so this is the end of the boot camp. You can contact us later as well if you have any doubts or for any other purpose. So this is the end of, so this is the last session. Complete your programming assignment and final task. After that, we will uh, release the final score. We'll grade your assignments by that time as well. And do you want the solutions of assignment or what? We can post the solutions if somebody wants. Okay. Okay, we will see to that part as well. Meanwhile, you focus on your programming contest and final task. I hope you learned something from the bootcamp, and seeing the positive reviews. It is
happy for us as well. So thank you. Bye. Hare Krishna. Yes, I will.